أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today we will discuss data collection methods. Previously, we discussed the operationalization of abstract variables and then development of instruments for measuring those abstract variables. After developing the instrument, there is need to check the reliability and validity of that instrument, which we discussed in the previous lecture. For measuring the reliability, we check stability and consistency of the instrument. Stability is measured with the help of test, retest reliability and parallel form reliability. In test, retest reliability, we conduct a test to a group of individuals, and then same test is reconducted after some period, preferably 2 weeks, to the same group of individuals. If there is good correlation between the scores of first test and second test, then retest reliability is confirmed. In parallel form reliability, we develop two parallel forms and then conduct those both forms to a single group of individuals. If scores of both forms are highly correlated, then parallel form reliability is confirmed. With respect to consistency, we measure inter-item consistency reliability. We measure correlation with the correlation of items within a concept, and if items have high correlations, then inter-item consistency reliability is ensured. Split half reliability. In this reliability, we divide our questionnaire into two equal halves and then conduct first half to a group of individuals and then second half to the same group of individuals. If the scores of first half and second half have high correlations, then split half reliability is also ensured. As regards the validity, it is measured through three methods. First is logical validity. In this validity, we ensure face validity as well as content validity of the instrument. Face validity and content validity both are verified by the expert of the subject area. Criterion related validity, we measure predictive reliability and concurrent reliability, and then congruent validity or construct validity. In this construct validity, we compute convergent validity and discriminant validity. This is the very important topic of validity, which is more relevant to the academic researchers. Convergent validity is computed by calculating the correlations among the statements, among the items of a construct. If items of a construct have good correlations, high correlations, then convergent validity is ensured. Discriminant validity relates to the correlations between the items of one concept with the items of another concept. Correlations between the items of both constructs should be very low. If this is the case, then discriminant validity is also confirmed. Today, we will discuss data collection methods. Data can be of two kinds, primary data and secondary data. Primary data is the data that is collected by a researcher from first-hand sources using methods like surveys, interviews, panels, focus groups, or experiments, etc. It is collected with the research project in mind directly from primary sources.
primary data is collected by the researcher himself. But secondary data refers to the data that is collected by someone other than the user, someone other than the researcher. जो बंदा डाटा यूज कर रहा है उसने खुद डाटा कलेक्ट किया हुआ हो प्राइमरी सोर्सेज से, तो इसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं. और अगर उसने किसी का कलेक्ट किया हुआ डाटा यूज किया हो अपनी रिसर्च के लिए, then it is called secondary data. Common sources of secondary data for social sciences include censuses and surveys, information collected by government departments, organizational records, and data that was originally collected for other research purposes. ये secondary data जो है ये किसी और ने कलेक्ट किया है, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई इदारा हो, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो. तो ये जितना भी डाटा इनके पास होता है वो सारे का सारा जो अगर हम अपनी रिसर्च के लिए यूज करें, then it is called secondary data. Primary data collection methods. Major primary data collection methods are focus group, panels, observation, interviews, and questionnaires. Interviews can be face-to-face interview, telephonic interview, and interview through electronic media. And questionnaires can be of self-administered and administered through mail, through electronic sources like email or Google Forms, etc. Let's now discuss these methods one by one. What is focus group? Focus group usually consists of 8 to 10 members with a moderator leading the discussion for 2 hours on a particular topic, concept or product. ये एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होता है जो किसी एक टॉपिक पर किसी एक कंसेप्ट के हवाले से किसी एक इशू के हवाले से इकट्ठे बैठ जाते हैं और वो डिस्कस करते हैं. यूजुअली 8 से 10 मेंबर्स होते हैं और एक मॉडरेटर होता है जो उनकी डिस्कशन को मॉडरेट करता है, कन्वीन करता है. और ये डिस्कशन अप्रोक्सीमेटली 2 घंटों तक होती है, इससे थोड़ी बहुत कमी ज्यादती भी हो सकती है. मेंबर्स आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टीज ऑन द टॉपिक. तो ये जो भी मेंबर्स ग्रुप मेंबर्स हम चूज करते हैं वो उस सब्जेक्ट एरिया के एक्सपर्ट होते हैं. अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें तो उस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट होंगे. अगर हम किसी कंसेप्ट की बात करें जैसे CSR है तो वो उस कंसेप्ट के एक्सपर्ट होंगे. इसके अलावा किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करें तो वो उसके रेलिवेंट लोग होंगे, उसके एक्सपर्ट्स होंगे. फॉर एग्जांपल डिस्कशन ऑन कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग और वुमेन मदर्स, social networking, etc. This method of data collection is less expensive and is usually done for exploratory level research. It has low capacity of generalization of the results. जो फोकस ग्रुप के हवाले से ये जो हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, इकट्ठा करके डिस्कशन करते हैं, तो ये डाटा कलेक्शन का एक लेस एक्सपेंसिव मेथड है. और आमतौर पे ये जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसकी तर्ज का होगा और उसमें हम एक्सप्लोरेटरी लेवल की जो रिसर्च है उसमें इसको यूज़ करते हैं. और इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको इतना ज़्यादा जनरलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें थोड़े से लोग होते हैं और उनकी अपनी राय उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काउंट होती है. पैनल्स. It is similar to focus group but meets more than once in order to study the changes or interventions need to be studied over a period of time. तो फोकस ग्रुप है वो हम एक ही दफ़ा लोगों को बुलाते हैं और उनके साथ डिस्कशंस करते हैं. लेकिन जो पैनल्स होते हैं, पैनल में हम लोग जिन लोगों को बुलाते हैं उनको हम एक से ज़्यादा दफ़ा मीटिंग्स भी उनके साथ करते हैं ताकि ओवर द पीरियड जो भी चेंजेस हों, जो भी नई जो डेवलपमेंट्स हों उनको टैकल किया जा सके, उनके हवाले से भी नई स्ट्रेटजी डेवलप की जा सके. मेंबर्स आर रैंडमली चोजन. इसमें पैनल में भी हम रैंडमली मेंबर्स को चूज करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो अपने अंडर टॉपिक अंडर स्टडी से कोई ना कोई रेलिवेंस होने की जरूर होती होगी. फॉर एग्जांपल, effect of advertisement of a certain brand need to be assessed quickly. Effect of advertisement of a certain brand
اب ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم اس کو ایک پینل کے ذریعے سے ڈسکس کر سکتے ہیں, انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. پینل ممبرس could be exposed to the advertisement and intention of purchase could be assessed. اس کے علاوہ جب کوئی پروڈکٹ when the product is modified then the response of the panel can be observed. اگر ہم کوئی ماڈیفکیشن کرتے ہیں کسی برانڈ کے اندر یا کسی برانڈ کے حوالے سے ایڈورٹیزمنٹ کرنے کی ضرورت ہو یا اس کی جو پرچیز کے حوالے سے ڈسکشن کی ضرورت ہو, اس کی اسیسمنٹ کی ضرورت ہو, تو ہم اس کے لیے پینل ڈسکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب برانڈ موڈیفکیشن آف اے پروڈکٹ ہے, اس میں جب ہم کسی چیز کو موڈیفائی کر رہے ہیں, پہلے سے ہٹ کر اس کی پروڈکشن کرنی ہے, تو اس میں بھی پینل کی ہم ہیلپ لے سکتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو یہ ریسرچ کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے, جس چیز کی بھی ہمیں انویسٹیگیشن کرنی ہوگی, ہم اس کو ایک پینل جو ہے پینل یا ایک تشکیل دیں گے اور اس پینل سے گائیڈ لائنز اس کے ڈسکشن کر کے ہم اپنا جو بھی ریلیونٹ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. آبزرویشن the method through which primary data is collected without involving people. یہ ایک انڈیویجول کی آبزرویشن ہو سکتی ہے, اس میں باقی لوگوں کو وہ انوالو نہیں کرتا, جیسے ہم فوکس گروپ میں کرتے ہیں یا پینل میں کرتے ہیں, یا سرویز جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں سے ڈیٹا لیا جاتا ہے. لیکن آبزرویشن میں کوئی سنگل جو مینیجر ہو سکتا ہے, کوئی سپروائزر ہو سکتا ہے, وہ ان کی جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے جسٹ آبزرویشن سے اپنی آبزرویشن سے ہی کام لے گا اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. فار ایگزامپل ویئر اینڈ ٹیئر آف بکس, section of an office, seating area of railway station which indicates the popularity, frequency of use, etc. The number of cans in the dustbin and their brands, the number of motorcycles versus cars parked in the university parking lot, etc. تو یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ آبزرو کر سکتا ہے اور اس کے آبزرویشن سے ہی ہم ہیلپ لیں گے. انٹرویو ایک بہت امپورٹنٹ ایک ڈیٹا کلیکشن میتھڈ ہے. An interview is essentially a conversation where one participant asks questions and the other provides answers. It refers to a one-to-one conversation between an interviewer and an interviewee. انٹرویو کے ذریعے سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ون ٹو ون ایک میٹنگ ہے جس میں ایک آدمی کوشچن کرتا ہے اور دوسرا آنسر دیتا ہے. We can use interview to collect data from the respondents on an issue of interest. It is usually administered at the exploratory stage of research. یہ ڈیٹا کلیکشن کا جو میتھڈ ہے, کسی بھی ایک ایشو کو ہم اس پر ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے انٹرویوز کنڈکٹ کر سکتے ہیں, اور یہ ایک ایکسپلوریٹری لیول کی ریسرچ کے لیے عام طور پہ کیا جاتا ہے. In case large set of respondents are needed, then more than one interviewer are used. Of course, اگر ہمیں زیادہ لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, زیادہ انٹرویوز کنڈکٹ کرنے ہیں, then ہمیں ایک سے زیادہ انٹرویورز کی ضرورت پڑے گی. Hence, they need to be trained. اگر ایک سے زیادہ بندوں کی ضرورت پڑتی ہے انٹرویو لینے والوں کی, تو یقیناً وہ ٹرینڈ ہونے چاہیے. کیوں ٹرین ہونے چاہیے؟ سو دیٹ وائس انفلیکشن, ڈفرینسز ان ورڈنگس ایٹسٹرا کوڈ بی اوائڈ. ایک بندہ ہے, اس کا سوال کرنے کا انداز اور ہے, یا تھوڑی بہت وہ وائسنس اس کے اندر آ سکتی ہے, تو ہمیں پہلے ان کو ٹرین کرنا ہوگا کہ کوشچن کیسے کرنے ہیں, وائسنس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے ایٹسٹرا. تو یہ انٹرویو جو ہے, انٹرویو از ویری امپورٹنٹ سورس آف ڈیٹا کلیکشن. Interview can be structured or unstructured. Unstructured interview kya? It refers to an interview in which the questions to be asked to the respondents are not set in advance. اگر ہم نے انٹرویو کنڈکٹ کرنے سے پہلے تو اسپیسیفک کوشچن جو ہے وہ سیٹ آف کوشچن جو ہے وہ نہیں بنا کر رکھے ہوئے, تو اٹ از کالڈ unstructured interview. No planned sequence of questions. It helps in exploring preliminary issues. اچھا, یہ کیوں ایسا ہو, ہم انسٹرکچرڈ انٹرویو کیوں کریں گے؟ بیسک سی کوئی بات ہو, نیا کوئی ایشو ہو, ہمیں اس کے بارے میں پورا علم نہ ہو, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جسٹ جائیں گے, ایک آبزرویشن کرنے کے بعد اگلا اسٹیپ ہوتا ہے, ہم ایک انٹرویو کرتے ہیں کسی
लोगों से डिस्कस करते हैं, तो वो इंटरव्यूज जो होंगे वो अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, कई बातें नहीं निकलेंगी उनमें जिनका हमें पहले पता नहीं होगा। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, उसमें जो हम सेट ऑफ क्वेश्चन जो पहले से तैयार नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी समथिंग अबाउट योर यूनिट एंड डिपार्टमेंट and perhaps even the organization as a whole in terms of work, employee and whatever else you think is important. हम जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिपार्टमेंट के बंदे से पूछते हैं, हाँ भाई अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताओ, अपने यूनिट के बारे में बताओ, और अगर हो सके तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताओ, कैसे काम चल रहा है, लोग कैसे डील कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं, और इसके अलावा जो आप समझते हैं इंपॉर्टेंट वो भी बता दें। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ योर डिपार्टमेंट। ये एक और जनरल क्वेश्चन है जो हम पूछ सकते हैं कि भाई आपके डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है जो दूसरों से जरा हटकर हो। तो दीज आर द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इन केस दे आइडेंटिफाई अ डिफरेंस, यू कैन आस्क हाउ कैन यू इम्प्रूव द सिचुएशन। वो अपने डिपार्टमेंट की कोई वीकनेस बताता है तो हम उससे अगला क्वेश्चन करेंगे, हाउ कैन यू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, इसमें कोई भी बड़ी नई बात सामने आ सकती है। एनकरेजिंग द रेस्पोंडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट। हम अपने इंटरव्यू से उसको इनकरेज भी करते हैं कि भाई जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सारी जरा खोल कर जानते हैं। Try to be pleasant and see if the respondent is not comfortable. यहाँ पर एक और चीज़ की जरूरत पड़ती है कि हम इंटरव्यू के साथ जरा एक खुशगवार मूड में हूँ, और अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा तो उसको भी रिमूव करने की कोशिश करें, या बात का पॉसिबल है कि हम वो इंटरव्यू ही पोस्टपोन करें, ये भी पॉसिबल है। Through unstructured interviews, different major areas might be exposed. तो जब आप इंटरव्यू कर रहे होंगे तो जो नए इश्यूज आपके सामने आएंगे जो पहले आपको पता नहीं था। From these, the researcher can pick some areas as focus variables which need further progress. तो आपके जो जनरल इंटरव्यू करते हुए कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपके ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आप उनको फोकस वेरिएबल के तौर पर ले सकते हैं ताकि मज़ीद प्रॉब किया जा सके, मज़ीद एक्सप्लोर किया जा सके। Now the researcher can devise a more focused approach and can develop a more structured interview emphasizing on some particular issues. तो unstructured interviews जो है उनसे लिया हुआ डाटा, उनसे कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को हम फर्दर यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लिए। उसमें हम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं, स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं, जो मोर रेलिवेंट हैं, जो ज़्यादा जिनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, हम उनको सामने ला सकते। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का ये बेनिफिट है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इट इज वन इन विच अ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस आर प्रीपेयर्ड बाय द इंटरव्यूअर इन एडवांस। अब हमने जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किया था उसमें हमारे पास कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं था जो इन एडवांस हमने प्रीपेयर नहीं किया था, हमें जनरल डिस्कशंस करते हुए चीज़ों को निकाला। अब हम उस अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से कुछ चीज़ों को लिया जो इम्पोर्टेंट है, उनके हवाले से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस राइट डाउन किए, और उसमें हम अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो उसमें क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करने के लिए हम लिटरेचर से भी हेल्प ले सकते हैं एक इंटरव्यू को स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए। एट दिस स्टेज he or she knows what information is needed and focusing on which factor is relevant to the problem in the study. The focus can be given to the factors which have surfaced during the unstructured interview. तो ये इस लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो इंटरव्यूअर समझता है, या वो जो मैनेजर या सुपरवाइजर जो भी रेलिवेंट बनता है, वो जो समझता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पिछले इंटरव्यू से निकली है या हमें कहीं और से मिली है, उनको भी शामिल किया जा सकता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल, during the previous unstructured interview, it was identified that the department needs improvement. जैसे उसने वीकनेसेस को डिस्कस किया तो हमने पूछा भाई क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, तो यकीनन उसने अपने एक अंदाज में या अपनी एक एबिलिटी के मुताबिक तो वो यकीनन बताएगा। Now you can focus on questions which address how to improve the department.
लेकिन अब हम उसमें और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, उसके बताए हुए क्वेश्चन भी ले सकते हैं, और इसके अलावा लिटरेचर से भी हेल्प ले सकते हैं। वो वी कैन आइडेंटिफाई दोज फैक्टर्स विच कैन इम्प्रूव दैट फैक्टर, और उन फैक्टर्स के हवाले से हम डिस्कस करने के लिए इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोगों से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट किए। दिस कैन बी डन थ्रू फेस टू फेस, over the telephone, or through computers via internet. Specific and predetermined same questions are asked from different respondents. अब जितने भी हम ये जो इंटरव्यू है, फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है, ओवर टेलीफोन हम कंडक्ट कर सकते हैं, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर सकते हैं, आजकल जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसके अलावा गूगल फॉर्म्स हैं, ईमेल है, इन सब के थ्रू हम इंटरव्यूज को कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल MS टीम्स है, जूम है, जिसके जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं, हम उनके थ्रू ये इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। और उसमें फिर क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक एंड प्री डिटरमिन्ड सेम क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स। हमने जो प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चन जो डेवलप किए हैं, हमने जो क्वेश्चन बनाया है, उसमें कुछ क्वेश्चन डेवलप किए हैं, वो सेम टू सेम क्वेश्चन हम हर आदमी से पूछें। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू दीज इंटरव्यूज is tabulated and then it is analyzed. Of course, ये डाटा जब कलेक्ट हो जाएगा उसको टेबल की फॉर्म में इसको राइट डाउन करेंगे, और फिर उस डाटे को, उसके पैटर्न्स को, उसके डिफरेंट जो है एंगल से उसको देखते हुए उसको एनालाइज करें। रिजल्ट्स could highlight the important factors influencing the issues. तो उसमें पॉसिबल है कि वो डिफरेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हाईलाइट करने वाले जो रिजल्ट्स भी सामने आए, जिनको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। Then this information is of qualitative in nature, which can be further empirically tested and verified using other methods like questioning. तो ये जो इंटरव्यू के जरिए से जो आई हुई इंफॉर्मेशन है, ये जो डाटा है, यकीनन ये क्वालिटेटिव टाइप का होगा, और लेकिन उसको मजीद हम एम्पिरिकली टेस्ट करने के लिए और मजीद वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चनर डेवलप कर सकते हैं, और उस क्वेश्चनर को फिर हम एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डाटा कलेक्ट करके मज़ीद उसको बड़े अच्छे और बेहतरीन अंदाज में स्टैटिस्टिकली एनालाइज करके मज़ीद उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उन रिजल्ट्स को जो प्रीवियसली हैं, और मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स भी। गाइडलाइंस फॉर इंटरव्यू, ये जो इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं उसमें बंदे का ट्रेन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चंद गाइडलाइंस है जो रिसर्चर्स ने हाईलाइट की है, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली। आप जिस बंदे से इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी बातों को 100% केयरफुली लिसन करें, और मोटिवेट द रिस्पोंडेंट्स। आप रिस्पोंडेंट जो है जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसको अगर ज़रूरत पड़े तो मोटिवेट करें कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है, डिफरेंट एंगल से बात पूछते हुए उसको मोटिवेशनल वे में उनसे बात करें, ताकि वो आपको अच्छे अंदाज में अच्छी इंफॉर्मेशन, मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे सकें। टेक नोट्स, आप एक तो उसको सुने ध्यान से, ज़रूरत पड़े तो उसको मोटिवेट भी करें, और साथ साथ अपने नोट भी लेते हैं। उन नोट्स में कई क्वेश्चन भी हो सकते हैं और छोटी छोटी बातें भी हो सकती हैं, जो पॉइंट्स हैं जो आपने बाद में एक डाटा के फॉर्म में लेकर आने हैं। तो यू नीड टू टेक नोट्स। बिल्ड प्रॉपर ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप विद इंटरव्यूई। आप जिस बंदे से इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आपके ऊपर उसका ट्रस्ट है तो वो बहुत अच्छे अंदाज में ऐसी बातें भी आपसे शेयर करेगा जो वो हर एक के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ये ट्रस्ट भी डेवलप करने की जरूरत होगी। तो आप गपशप के माहौल में, गपशप के अंदाज में एक ट्रस्ट डेवलप करेंगे, एक उसके साथ जो ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करेंगे कि वो इंटरव्यू जो है वो आपकी जो रेलिवेंट चीज़ें हैं जो आप पूछना चाहते हैं, और वो पॉसिबल है किसी और को तो ना बताना जाए, लेकिन आपको भी वो क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इशू। इसमें एक और बात है, बात कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके इंटरव्यू की समझ में ना आ रही है, या बात आपकी समझ में ना आ रही, तो आप ऐसी बातों को क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। आप उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर आपको समझ में कहीं पे एम्बिग्यूटी है तो आप उससे क्लैरिफाई कर सकते हैं। फिजिकल सेटिंग आपकी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इंटरव्यू लेते हुए कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, वो कहाँ पर खड़े हुए हैं,
आप कहीं रास्ते में खड़े हुए हैं, घर में के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी फिजिकल सेटिंग जो है उनके आप बैठने की या खड़े होने की या गपशप करने की कौन सी फिजिकल सेटिंग जो है वो ठीक होगी? वो फिजिकल सेटिंग जो आपके जो डाटा कलेक्शन में हेल्पफुल है। आप आपस में इतने दूर ना बैठे हुए हो कि पता ही ना चले, बातें जो है वो कंप्लीटली समझ ना आ रही हूँ। आप उनके जो डिफरेंट जो आपकी नॉन वर्बल जो इंडिकेशन होती हैं एक बंदे की, वो भी वहां से नजर आ रही, ऐसे अंदाज में बैठे। तो फिजिकल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर रिसर्च एंड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, आपको जरूरत पड़ सकती है उसको बताने की कि भाई हम ये क्यों रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, हम आपसे इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, और आपसे एक तो ये हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू वाला मेथड ही हमने क्यों सिलेक्ट कर लिया, हमने क्वेश्चनर वाला मेथड पे जा सकते थे, तो आपसे हम इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, ये भी उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस रिसर्च एंड व्हाई वी हैव अडॉप्टेड दिस क्राइटेरिया, यू मे हैव टू एक्सप्लेन योर रिस्पॉन्स। नाउ फेस टू फेस इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू यकीनन वो इंटरव्यू है जिसमें आप आमने सामने बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, फिजिकली प्रेजेंट हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिफाई डाउट्स, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही आप उससे क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ती है बात को रिपीट करने की, आप रिपीट कर सकते हैं। आपकी बात अगर उसकी समझ में नहीं आई, आप अपने फिक्रे को, अपनी बात को रीफ्रेज करके बयान कर सकते हैं। और इसके अलावा यू कैन गेट नॉन वर्बल क्यूज, जो ऐसी बातें वो अपने जो इशारों से बात करता है, वो वाली बातें जो वर्बल नहीं होती बल्कि इशारों की जुबान में होती हैं, तो आप उनको भी देखकर एक जज कर सकते हैं, एक अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? वास्ट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड कॉस्ट एनोनिमिटी। वास्ट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कॉस्ट और एनोनिमिटी। अच्छा, इससे हमें ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत है। फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट करना हो, फॉर एग्जाम्पल हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं प्रोफेसरों से, तो क्या करेंगे? लाहौर जाएंगे, मुल्तान जाएंगे, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, बहावलपुर, जहाँ जहाँ प्रोफेसर बैठे हुए हैं हम उनसे डाटा लेंगे। तो ये फेस टू फेस इंटरव्यू करने के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, जो जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी और एनोनिमिटी नहीं रहेगी। हम जिस बंदे से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अब वो हमारे लिए एनोनिमस तो नहीं है, तो वो हम उसको जान गए, हर चीज़ हमें पता चल गया, नोट्स लेते हुए हम उसका नाम भी नोट कर सकते हैं डिस्कशन के दौरान, और कोई इंडिकेशन भी कर सकते हैं जिससे पता चले कि ये फलां बंदा है। तो एनोनिमिटी नहीं रहेगी, जाके डाटा कलेक्शन में एनोनिमिटी होनी चाहिए। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फेस टू फेस इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू, यकीनन आप टेलीफोन करेंगे, आपके पास नंबर है किसी बंदे का, प्रोफेसर का, आप इंटरनेट से लेके फ़ोन करते हैं, फ़ोन कॉल पर आप उनसे डाटा लेते हैं, तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। एडवांटेजेस, वाइडर रिसर्च इन शॉर्ट टर्म, आप घर बैठे हुए ही आप जिन लोगों का डाटा लेके उनसे फ़ोन करते हैं, तो आपको यहाँ से मुल्तान जाना, मुल्तान से 5 प्रोफेसर से डाटा कलेक्ट के फिर वापस घर आना, तो कम से कम एक यूनिवर्सिटी के 5 प्रोफेसर से डाटा लेने के लिए कम से कम एक दिन की जरूरत है। लेकिन अगर आप वही इंटरव्यू घर से फ़ोन करें सुबह 8 बजे, तो अगर वहाँ जाकर आपने 20-20 मिनट का, 15-15 मिनट का अगर इंटरव्यू करना है, तो वही 15 मिनट का इंटरव्यू आप टेलीफोन पर करें, 2-3 मिनट इजाफी भी लगा लें, 20 मिनट लगा लें 15 के बजाय, तो आप जो है शॉर्ट टाइम में ज़्यादा वाइडर रीच कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों से टेलीफोन पे इंटरव्यू कर सकते हैं। समटाइम ईजी टू डिस्कस पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द फोन। अब हम जब आमने सामने नहीं है, टेलीफोन पर है, तो बाज़ औक़ात हम ऐसी बातें उनसे डिस्कस कर लेते हैं, वो हमें ऐसी बातें नहीं बता देते हैं जो कि वो आमने सामने बैठकर बताना अच्छा नहीं फील करते, या उनको लगता है कि हमें ये नहीं बताना चाहिए। टेलीफोन पर एक बंदा एनोनिमस है, एक दूसरे से दूर है, और वो हो सकता है कि जस्ट उसने इधर से टेलीफोन कहीं से लिया, थोड़ी देर में वो वैसे ही भूल जाएगा, हमें जानता भी नहीं होगा। तो हम इस तरह की बात इंफॉर्मेशन भी शेयर कर लेते हैं जो कि हमारे टॉपिक अंडर स्टडी से रेलिवेंट हो सकती है और यूजफुल हो सकती है। इसके अलावा की तो हमें जरूरत नहीं, तो रेलिवेंट है। डिसएडवांटेजेस, कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट वार्निंग। टेलीफोन है, सिस्टम में खराबी की वजह से भी कट सकता है, उस बंदे को
कोई काम है तो वो जस्ट कहेगा कि यार सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, और वो बंद कर देगा। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि हम इसको वो विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन, टेलीफोन लाइन कैन बी ड्रॉप, कैन नॉट हैव अ प्रोलॉन्ग इंटरव्यू। तो टेलीफोन पर इंटरव्यू जो है उसको प्रोलॉन्ग नहीं किया जा सकता जरूरत के मुताबिक। तो इसलिए एक उसका एक ड्रॉबैक है कि प्रोलॉन्ग इंटरव्यू में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम और भी कलेक्ट कर लेते हैं, जबकि टेलीफोनिक इंटरव्यू में ये चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं है। नॉन वर्बल क्यूज एंड इंडिकेशन कैन नॉट बी यूज्ड। जैसे पहले हमने बात की इशारों की ज़बान, अब यहाँ पे इशारों की ज़बान जो है वो हमें क्योंकि नज़र नहीं आ रही होगी इशारे उसके, तो हम नॉन वर्बल क्यूज जो है उनसे अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हेल्प नहीं हो। तो क्लोज वर्सेस ओपन क्वेश्चन, जो हमारा स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड दोनों ने क्लोज क्वेश्चन भी होते हैं और ओपन क्वेश्चन भी होते हैं। तो क्लोज क्वेश्चन में का बेनिफिट क्या है? ईजी। क्लोज क्वेश्चन जो होते हैं उसमें डाटा कलेक्ट करना ईजी होता है। हम हमारा जो टॉपिक अंडर स्टडी है हम उसके इर्द गिर्द रहते हैं, उसके एक स्पेसिफिक सर्कल के अंदर रहते हैं, तो हमारा ईजी होता है डाटा कलेक्ट करना। ओपन क्वेश्चन में बात कहीं की कहीं निकल जाती है। हम बात तो अगर हम परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे हैं प्रोफेसर से, तो बात निकल जाएगी खानों की तरफ और आगे रेस्टोरेंट की तरफ, वो अपने मजाक वाली बातें भी ला सकता है एक्सेट्रा। तो क्लोज क्वेश्चन जो है इनको ऐसे इंटरव्यू को कंडक्ट करना ईजी है। कॉस्ट ऑफ कोडिंग इज रिड्यूस्ड। जब हमारे पास क्लोज क्वेश्चन होंगे तो उसकी जो कोडिंग होती है वो हमारे लिए ईजी है, और अगर ओपन क्वेश्चन होंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम बार बार जो है हर एक नई चीज़ के लिए एक नई कोडिंग डेवलप करें। कोई कर स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू, जो क्लोज क्वेश्चंस होते हैं एक स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू की फॉर्म ले लेते हैं और उनको हम एक इंटरव्यू को जल्दी कंडक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा टाइम जो है एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू है वो आधे घंटे के अंदर होना चाहिए, तो वो आधे घंटे 35 मिनट के अंदर हो जाएगा, 25 मिनट के अंदर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ओपन क्वेश्चन उसमें डालेंगे तो वो स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू नहीं रहेगा, उसमें हो सकता है आधे घंटे के बजाय 1 घंटा 1.5 घंटा भी लगे। कैन बी आंसर्ड विदाउट थिंकिंग। तो ये जो क्लोज क्वेश्चन होंगे तो उनका आंसर देना इजी होता है, उसके लिए लंबा चौड़ा सोचना नहीं पड़ता। जो हमारा इंटरव्यू है उसमें आजकल भी अगर हम देखें, ये जो हमारे पास एंकर्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो एक हिसाब से वो भी इंटरव्यू लेते हैं, उन्होंने बड़े क्लोज से क्वेश्चन रखे होते हैं। अगर वो देखते हैं कि हमारा जो रेस्पोंडेंट है वो कहीं दूर निकल रहा है तो वो दोबारा फिर उसको अपने क्लोज क्वेश्चन की तरफ लेकर आते हैं कि भाई क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है उसके अंदर उन्होंने खत्म करना है। तो जब हमारे पास एक क्लोज क्वेश्चन होंगे तो जवाब देने वाले के लिए भी आसानी होती है कि वो उनका जवाब दे और उसमें लंबा चौड़ा फिर सोचना नहीं पड़ता। और ओपन क्वेश्चन होंगे तो फिर उसको लंबा चौड़ा सोचना नहीं पड़ेगा, सोच कर बात करनी पड़ेगी, वो बात लगेगी। प्री टेस्टिंग इज मस्ट। आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, आप उसके रिजल्ट्स को चेक करें, उसको एनालाइज करके देखें, दूसरे 2 3 4 5 को करने के बाद तो जो आप जो है क्वेश्चनर जो आपने बनाया, आपने इंटरव्यू के लिए जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जो फ्रेज किए हुए हैं, वो क्वेश्चन जो है आपका 2-3 दफ़ा इंटरव्यू करने से पता चलेगा कि वो उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं है। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है यकीनन आपको मॉडिफाई करने पड़ेंगे, जो कि बाज़ बात हम क्वेश्चन हम किसी और अंदाज में लिखते हैं क्वेश्चन, अगला बंदा किसी और चीज़ उस अंदाज में समझता है, तो हमें पता चलता है कि जो हम पूछना चाहते हैं वो समझ नहीं रहा, वो कुछ और बताई जा रहा है, तो हम अपने उस क्वेश्चन को रीफ्रेज कर सकते हैं। तो प्री टेस्टिंग इज मस्ट। लिमिट द रिचनेस ऑफ डाटा। तो ये क्लोज क्वेश्चन जो है, ये जो क्लोज क्वेश्चन है दे लिमिट द रिचनेस ऑफ डाटा। हमारे पास क्लोज क्वेश्चन है, अगर हमने 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं तो हम टू दी पॉइंट अगर हम बात करते हुए आंसर लेंगे तो ऑफकोर्स वो बहुत एक मुख्तसर सा डाटा बनेगा जो भी उसका बनता है। लेकिन अगर ओपन क्वेश्चन हो तो बात का बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो नई इंफॉर्मेशन उसमें हमें दे देते हैं, तो रिचनेस ऑफ डाटा जो है वो लिमिटेड हो जाती है क्लोज क्वेश्चन। तो ये इंटरव्यूज हमने डिस्कस किया, फोकस ग्रुप और पैनल्स और इंटरव्यू, ये 3 मेथड मेन है। The data is collected from primary and secondary sources. Primary data is collected
via observation, panels, interviews, questionnaires, etc. Interviews can be structured and unstructured. While interviewing, there are certain guidelines which we have to follow. There are some advantages and disadvantages of face-to-face and telephonic interviews. Thank you very much. Allah.